Assalamualaikum dear students, welcome to our next class on your YouTube channel Mathematics Online. हमने इस चैप्टर में पहले डेरिवेटिव्स का बेसिक देखा है, फंडामेंटल्स देखे हैं। अब इस लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस देखने जा रहे हैं और इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस जो है वो इस तरीके से है। If you have two functions, they are in sum, and you want to find the derivative. So the derivative of sum of two functions is equal to sum of their derivatives. Okay, that means अगर दो functions हमारे पास हैं वो addition में हैं और आपको उनका derivative निकालना होगा. We have to find the derivative of each separately and add them. इसी तरीके से derivative of difference is the difference of their derivatives. Okay, और next जो है that is multiplication rule और product rule जिसको कहते हैं, that is derivative of product is equal to, it's like this, derivative of product is equal to second into derivative of first. Here it is second, it's as such, and derivative of this f of x, second into derivative of first plus first into derivative of second, or you can remember it like this, first into derivative of second plus second into derivative of first. Okay, next is derivative of quotient of two functions. Quotient means if you have two functions in division and you want to find the derivative of these two functions, then how can that be evaluated? That is denominator square, means whatever is the denominator square, and in the numerator you have to go like this in the product rule, but there's a difference. Here it was positive sign and here it is negative sign, so you have to write it is same like this, second into derivative of first, but here minus times first into derivative of second. Is it okay? So this is also called as a product rule, is also called as Leibniz rule. You should remember this. After that, we have some theorems here and we have some results. Let's first of all go to the theorem number 6. It's here, derivative of f of x is equal to x raised power n is n x raised power n minus 1 for any positive integer n. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन x raised power n फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव होता है n times x raised power n minus 1. तो कैसे हम इसको देखेंगे? You know the derivative इसका जो फंडामेंटल है that is हम इसको फाइंड करते हैं with the help of limits. Okay, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है that is derivative of any function is equal to limiting value as h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ओके, सो यहाँ पे हम f का वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे जो यहाँ दिया गया है x रेज पावर n से. तो अगर आपको f जो है ये ऑपरेट होता है x प्लस h पे, तो मीन्स हियर f इज ऑपरेटिंग ऑन x, इट इज x रेज पावर n. f is operating on x plus h, so we have to replace it by x plus h whole raised power n. Okay, यहाँ पे f of x है, यहाँ पे x raised power n आएगा. इन दो का डिफरेंस है, तो इसके बाद हम इसको देख लेंगे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल थ्योरम इस तरीके से है, x raised power x plus h whole raised power n, that's equal to nc0 x raised power n, nc1 x raised power n minus 1 h plus nc2 x raised power n minus 2 h square plus dash and dash and dash, and last term is ncn h raised power n. और यहाँ पे जो है x plus h whole raised power n, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से तो ये माइनस x raised power n आएगा, बिकॉज nc0 is 1, और बाकी जो बचता है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो हमने राइट हैंड साइड में लिखा है. तो अब डेरिवेटिव को हम देखेंगे, दैट्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू 0 x plus h raised power n minus x raised, that means it's actually the left hand side, this. So in order to find the limiting value of this divided by h, we have to find the limiting value of this divided by h. So we will, instead of this numerator, we have to write this. I have highlighted here. So हम इसको लिखेंगे और h and h goes. Now we will give the limit as h tends to 0. हम यहाँ पे h
टेंडिंग टू जीरो करेंगे, पहली टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स जो है वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि h टेंड्स टू जीरो. वी आर लेफ्ट विद ओनली फर्स्ट टर्म एंड दैट्स n x raised power n minus 1. I hope you have got it. This is the first way. And next way जो इसका एक और तरीका है वो है कि हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास d by dx of x raised power n है. We have to find its derivative and we have to actually prove that this is equal to nx raised power n minus 1. हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. We can break it d by dx of x raised power n को हम लिख सकते हैं it is x into x raised power n minus 1. फिर हम इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके लिखेंगे it is d by dx of, देखिए it is d by dx of, हम पहले x का डेरिवेटिव निकालेंगे और दूसरी फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे प्लस इस x को ऐसे ही रखेंगे और दूसरी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. x का डेरिवेटिव 1 है और ये x raised power n minus 1 ऐसे ही है प्लस x ऐसे ही है और ये x raised power n minus 1 इसका डेरिवेटिव आएगा एक कम करके that is n minus 1 x raised power n minus 2 जो हम इसको हम इंडक्शन हाइपोथेसिस से लिख सकते हैं. ओके सो इट इज x raised power n minus 1 प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये n minus 1 x raised power n minus 1 आएगा. इनको एडिशन करने के बाद आपके पास आएगा n x raised power n minus 1. सो ये वाली थ्योरम जो है किसी भी power of x scale की true है where this n can be any real number. Okay. So इसी तरीके से नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे इस थ्योरम को लिख सकते हैं. जो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए दैट मीन्स पावर एक रिड्यूस होता है. यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस. जब भी हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में डेरिवेटिव निकालते हैं उससे उसका क्या बनता है कि उसका एक पावर रिड्यूस होता है और पावर इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होता है. जस्ट लाइक हियर इट इज a n x raised power n. जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये आएगा n a n x raised power एक पावर कम n minus 1. इसी तरीके से n minus 1 a n minus 1 x raised power n minus 2. इसी तरीके से एक एक करके इसको हम लिखेंगे और लास्ट पे जो टर्म आएगी वो आएगा a1 बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 आएगा और a0 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा. ओके तो ये है पॉलिनोमियल्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. ये भी इसकी एक एग्जांपल है एक्सरसाइज है इसको आप देख लीजिए. इसके बाद जो है वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कुछ है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x हमें निकालना है. हमारे पास f of x is equal to sin x. तो we have to find the derivative of this. हम कैसे इसको फाइंड करेंगे. Simply you know that it is limiting value is tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So it is limiting value is tending to 0 f of x plus h के बदले आपको लिखना है f जो कि डिफाइंड है sin x, f of x plus h ये डिफाइन होगा sin of x plus h minus sin x divided by h. Okay. So यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला sin a minus sin b that is twice cos of a plus b by 2 cos of a minus b by 2. So हमने यहाँ इसको यूज किया है डिवाइडेड बाय h जो यहाँ पे है और फिर हम इसको sin h by 2 जो है और यहाँ h और ये 2 इसको डिवाइड करेंगे. इसको हम अलग से लिखेंगे, इसको अलग फंक्शन बनाएंगे और ये cos का जो टर्म है इसको अलग से फंक्शन बनाएंगे. फिर हम इसको अलग अलग लिमिट देंगे बिकॉज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स. ओके तो हमने इसको अलग अलग से लिमिट दे दिया और यहाँ पे जो है h जो है वो 0 है, यहाँ बनेगा cos of x और ये स्टैंडर्ड लिमिट से आपको 1 आएगा. सो ये cos of x into 1 cos of x है. तो हमने प्रूव किया अगर आपके पास फंक्शन f of x is equal to sin x है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो cos x आएगा. ओके उसका डेरिवेटिव cos x आएगा. इसी तरीके से हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ cos x. दैट्स होमवर्क फॉर यू एंड यू डू दैट. और डेरिवेटिव ऑफ tan x बराबर इसी तरीके से डेफिनेशन भी वही है. यहाँ पर tan of x plus h minus tan of x आएगा डिवाइडेड बाय h आएगा और यहाँ tan of x plus h जो है इसको लिखेंगे हम sin of x plus h divided by cos of x plus h और tan of x को लिखेंगे हम sin x by cos x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करेंगे. we will have the cross multiplication here. तो यहाँ पर ये टर्म बनेंगी और इसके बाद यहाँ पे sin a cos b minus cos a sin b आता है. sin a cos b minus cos a sin b that is sin of a minus sin of a plus b.
ओके, सो ये आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी ये आएगा, साइन ए ये है और बी एक्स है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एच, और नीचे एच ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर में है कॉस ऑफ एक्स प्लस एच कॉस ऑफ एक्स। ओके, तो ये आएगा लिमिटिंग वैल्यू एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच दैट इज इक्वल टू 1, और ये वहाँ लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, h is here 0 so it is cos of x, और यहाँ ऑलरेडी एक cos x है, ये 1 by cos x into cos x cos square x आएगा, 1 into any number is that number but 1 by cos square is equal to secant square। so हमने प्रूव किया है कि डेरिवेटिव ऑफ tan of x is equal to secant square x। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin square x निकाल सकते हैं, you do it, आप देख लीजिए इसको। और इसी तरीके से हम अगर एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 13.2 पे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही इन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। ओके, यू हैव टू यूज द अबव रिजल्ट्स, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा है पॉलिनोमियल्स के लिए, इनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।